Sir, your voice is not audible. Can you unmute yourself? Yeah, hi ma'am. Good evening, sir. Good evening. Hi, all, good evening. So I think we can wait for a few more minutes and then we can start. Okay. Yeah. हम्म, वही मैं बोल रही थी। हम बोलिए ना। No, sir, your voice is not audible. Can you unmute yourself? Hello, can you hear me now? Yes, sir. No, Yeah. it's audible. So what I was saying that can we wait for a few more minutes and then we can start? Can you hear me? Adiba and Ruchi, you can unmute yourself. Can you hear me, everyone? Yes, sir. Okay, thank you. So Adiba, we can wait for a few more minutes, but before that, like you have joined from which location? Sir, Raipur. Raipur. And what is your background? Sir, currently I'm in BTech third year. Which college? Shankaracharya, Sankara Bhilai or Raipur? Raipur, sir. Okay, third year. Yes, sir. Okay, okay. So I think third year, have you also completed VT from our center, Raipur center? Uh, सर VT डन की हूँ सर, मगर वो ऑनलाइन की थी भोपाल से. अच्छा, ऑनलाइन भोपाल से. ओके, ओके. यस सर. यस. हाँ, बिकॉज मोर देन 250 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड VT. यस सर. उन्होंने VT किया था रायपुर सेंटर से. ओके. यस. यस सर. ओके, सो दिस कंपनी इज नोन टू यू और यू आर अवेयर अबाउट दिस इन्फिनिक्स लर्निंग सॉल्यूशंस? सर सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आया था तो इंक्वायरी की थी तो. ओके, परफेक्ट. So यस सर. I'll quickly brief about us, okay? Ki Adiba, like what we do. So basically, we have multiple verticals, okay? यस And सर. then the training is one of the vertical, placement is another vertical, internship is there, VT is there, and there यस are सर. other like we have corporate training. Then we also collaborated with the many colleges in Chhattisgarh. Yeah, so we are like official partner of CSBTU. Okay, we are यस सर. official partner of RIT. यस. Then the Rungta College, Bhilai. Then CSIT Bhilai. Also, like we have completed, we can say that we are official partner of other there are many other colleges in the Raipur zone. Okay. And then Sankara as well, basically we have done many, we have completed VT for the 6th SAM, then the 4th SAM, and also the industrial visit we completed for the Sankara in the few months back, okay, Sankara Raipur. So we are closely working with the many colleges in the Raipur center, Raipur zone, Chhattis, Bhilai zone, and also like Bilaspur zone. Basically, we have entered, then we have tied with the few colleges. Okay. यस सर. Okay. So, यस. this is about the brief about the company, like what we do, and this is the program, like data analytics program. Okay. So it's a 6 months program, like where is the focus much more on the different tool technologies, and then all the like different languages. Then the tools will be covered, along with the placement preparations, like kind of a mock interviews will be conducted. So we have a very comprehensive. We can say that the plan. I will not cover all this point because anyways this will be covered by ma'am. But the plan overall is that like how that we focus. So we focus on the technical skill assessment, functional skill assessment. Then on a regular basis, basically we conduct a mock interviews. Okay, and this यस सर. reviews basically is completed and conducted by after completing each and every module. So let's say like there are 5 to 6 modules in the overall program. Okay, so this mock will be conducted like after each and every module. You'll be getting a feedback, and feedback basically contains the details about the three sections. So like your communication skill, your presentation skill, then your technical skills, and then then your project skills. So the detailed यस सर. feedback that we provide, okay, once in a month, twice in a month. Then we also guide like how you can improve your HR related questions, soft skill questions, and all that. Yeah. So that is normally asked in the interview. So this is all about, we can say that the program, like how we have a structure design, and this is especially designed for the
students who are looking for a like who are in the third year, who are in the second year, who are in the final year, or who have already completed the BTech, MCA, engineering, and all that. Yeah, Yes, sir. basically ready for the placement, and this is the more detailed program where we cover the detail about the data analytics, some portion of the machine learning, some portion of the AI, then the MySQL, Power BI. So detailed program we cover. So at least you can ready or a student can ready for an interview. Okay, for the industries. Yeah. Yes. Then we have our ma'am Ragini ma'am. Okay, so Ragini ma'am is one of our senior trainer. So she has 10 plus years of experience. She has completed many batches in our center. Okay, and then the two more batches are currently going on in the offline mode, online mode. Okay, and Yes, sir. so she'll be like taking through these processes about the data analytics and all that. So this is all about the company profile. How do we work? What we do? Like we have collaborated with many colleges. Yeah. And Yes, there sir. are many industries expert. They are currently working associated with us. So they are from a different locations like Bangalore locations, Hyderabad locations, Pune locations. Okay. So also basically you'll be getting a chance to interact with the industry expert and then how that you can prepare for an interview, let's say like for a particular company. Okay. So this is another advantage of the course. So over to you, ma'am. Okay. Then you can start. Yes, thank you, sir. Thank you. So, Adiba, Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. yeah, yeah, no issue, sure. I'm waiting for some other student. So, Adiba, I know about you. Ruchi, what's about you? You are from technical background or any other non-technical background? Ruchi, am I audible? Suraj, am I audible? Before explaining anything, I want to know you are all from technical or non-technical background so that I can explain according to this. Ma'am, you are audible now. I'm generally belonging to technical background, ma'am. Uh, which uh, which bachelor means BSc, BTech, which type of Ma'am, course? currently I'm final year student of BTech CS Engineering Okay, from which college? from Jain Narayan College of Technology, Bhopal. Okay, and what about you, Ruchi? Ruchi, I think my voice is audible. Okay, no issue. Suraj and one more student, Sil Adiba Khan. Okay, you both are. Someone is joining soon. Adiba and Suraj, you both are from technical background. So I think so. You have knowledge about what is the data analytics and data science. Okay. Yeah, ma'am. Okay. Actually, some student also want to join, so I'm waiting for that. If you have no issues, Suraj and Adiba. Yes, ma'am. Okay. Adiba and Suraj. मैंने यहाँ पर basically you are also from Raipur, Suraj. No, ma'am, I'm basically from Bhopal. अच्छा, you are from Bhopal. Okay. And Ruchi, my voice is audible. Sneha. Okay, I'm waiting. Okay. Uh, no, sir. No, sir, she is not there. तो अदीबा एंड सूरज बेसिकली मैं यहाँ पर आपको डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना इम्पोर्टेंस यूजर आई थिंक सो यूजर है ना स्नेहा Yeah, I आर यू am. देयर या Yeah, I am there.
Sneha, I just want to know about you. You are from technical background or non-technical I'm background? from technical background. Okay, Actually, I and used to which course? automation testing. I used to work in TCS 10 years before. I have an experience. Ajit, I already told you Yeah. about you. Yeah, I Hmm. think. Okay. So, So I have shall we done start BTech. now? Can we Yeah. start now? Okay. Yeah. मैं तो फिर आप लोगों को ना थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज देना चाहूंगी व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स और डिमांड क्या है अभी, ठीक है? इस कोर्स का डिमांड कैसे है, क्या इसमें सैलरी एक्सपेक्टेशंस है, जस्ट ओपन माय स्क्रीन इज विजिबल अदीबा सूरज? No, No, ma'am. ma'am. No. नो, नाउ आई एम शेयरिंग. ओके, नाउ इट इज विजिबल. Yes. Yes, ma'am. ओके, ठीक. इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, आपने सबने अभी सुना होगा कि बहुत ज्यादा डेटा. इफ आई टॉक अबाउट द डेटा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के बच्चे हैं, तो फिर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगी. यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सूरज एंड अदीबा? ठीक है. No, ma'am. सो इफ आई टॉक अबाउट डेटा देन व्हाट इज डेटा? एनीवन? एनीवन? व्हाट इज Data is डेटा? data is generally raw fact and figures. ओके. In simple word, I can say that data is the piece of information. Which kind of information? Any kind of information. ठीक है. आज के डेट में लाइक हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है. सोशल मीडिया में हम हर एक लाइक हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी क्लिक कर रहे हैं, सिंगल क्लिक में भी हमारा डेटा जनरेट हो रहा है. बिकॉज यू ऑल फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, सो आई थिंक सो आपको पता होगा कि आज के डेट पे डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है. एम आई राइट? Yeah. ठीक है, डेटा से ज्यादा आई थिंक कीमती कुछ भी नहीं है ना? तो डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस अभी डिमांड में इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन्हीं का रोल है. आप शायद टेस्टिंग पे थे, है ना Yes. स्नेहा? Yes. Automation है ना, testing में. ऑटोमेशन में थे, ठीक है. Hmm. तो अभी धीरे धीरे करके जैसे थोड़ा जैसे डेटा एंट्री वाली जॉब हो गई, टेस्टिंग वाली Hmm. भी जॉब धीरे से अभी कम होते जा रही. क्यों? बिकॉज एआई इज कमिंग, ठीक है. सारी चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे चले गई है जो एआई कर रहे हैं, ठीक है. उससे क्या हो रहा है देखो, पूरा अभी जॉब खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा. बट जैसे जैसे बाकी जॉब ले आउट होते जा रहे हैं बाकी लोग, वैसे ही वैसे डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा मशीन लर्निंग एंड एआई इंजीनियर की डिमांड्स बढ़ती जा रही है. अब बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग एआई, हमारा जो पूरा सेशन है वो डेटा एनालिटिक्स हम बोल रहे हैं, बट उसमें आपका मशीन लर्निंग भी कवर करेंगे हम. इसमें हम एसक्यूएल, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई एंड मशीन लर्निंग तक कवर करेंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है. हम बहुत ज्यादा एडवांस मीन्स अभी एआई पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है. अगर आप मशीन लर्निंग तक लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए डीप लर्निंग एंड एआई, जनरेटिव एआई, ये सारी चीजें आसान हो जाएगी. लेकिन एक साथ अगर आप सब सीखेंगे बोलेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए सिंगल कोर्स, ठीक है. ये खुद आपको 5 to 6 मंथ लगेंगे. आप एज ए डेटा एनालिटिक्स जॉब पे अगर अभी इंटर करते हैं तो आप धीरे से स्विच कर सकते हैं डीप लर्निंग खुद से. आप मशीन लर्निंग तक कर लिए तो आप डीप लर्निंग में ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएंगे, ठीक है. थोड़ी सी लाइब्रेरीज एक्स्ट्रा होंगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा होगा, बट मशीन लर्निंग इज सफिशिएंट फॉर राइट नाउ. तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जॉब ऑप्शन आपको आते होंगे, लिंक्डइन वगैरह ढूंढते हो तो, है ना. डेटा एनालिटिक्स,
ML इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंस, बिग डेटा इंजीनियर। तो अभी फिलहाल आई थिंक स्नेहा आपने जॉब कर लिया है तो आपको थोड़ा पता होगा, बट स्टूडेंट को पता नहीं रहता हम बेसिकली किसके लिए अप्लाई करें, हम्म, है ना सूरज? यस मैम। किसके लिए हम एलिजिबल हैं? इफ आप डेटा साइंस का कोर्स करते हो, लाइक मैं अभी, जस्ट मिनट है ना, थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा अभी डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स, ML इंजीनियर, ठीक है, और डीप लर्निंग इंजीनियर आपने सुना होगा, ठीक है, डेटा इंजीनियर, एक होता है डेटा साइंटिस्ट। ये सारे जॉब वैकेंसी आपने सुना होगा, लेकिन सारे किससे हैं? डेटा से रिलेटेड है, जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। और अभी 10 साल तक यही डिमांड में ही चलेगा, आगे तो केवल AI ही चलेगा, बट अभी 10 साल तक यही चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई टॉक अबाउट द डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एंड डेटा इंजीनियर, तो हु इज डेटा इंजीनियर? डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है? लाइक मुझे कोई प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन करनी है, कोई मॉडल बनानी है, कोई AI मॉडल बनाना है। मुझे एक ऐसी मॉडल बनाना है जिसमें मुझे यूज्ड कार प्राइस का प्रिडिक्शन, यूज्ड कार का प्राइस प्रिडिक्शन करना है। गेटिंग माय पॉइंट सूरज, अदिबा, स्नेहा? yes. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए होगा? डेटा, हम्म, है ना? डेटा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी मॉडल बनाना, ठीक है। AI जो ट्रेन होता है वो डेटा पे ही ट्रेन होता है। डेटा कलेक्शन भी एक टास्क होता है, ठीक है, डेटा कलेक्शन भी एक टास्क होता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए मॉडल बनाने के लिए डेटा, ठीक है। तो वो डेटा कहाँ से आएगा? या तो मैं फिजिकली कलेक्ट करूंगी। फिजिकली कैसे कलेक्ट करूंगी? मैं कुछ कार डीलर्स के पास जाऊंगी, कोई मेरे फैमिली मेंबर्स की, आपने कौन सी कार बेची है, सेकेंड हैंड कार बेची है, कितने की बेची है, कितना माइलेज था, कितना है, कितने प्राइस पे बेची है। तो ऐसे में कितने डेटा इकट्ठा कर पाऊंगी? 10, 12, 15, ठीक है। बट मुझे किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए कितना चाहिए? वास्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। तो ये मैं कहाँ से? सर्वर से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। ऑलवेज सर्वर से करोगे? नॉट नेसेसरी, है ना। कलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा, कलेक्शन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं आपको डेटा इंजीनियर का काम समझाना चाह रही हूँ। तो सर्वर से मैं कलेक्ट कैसे करूंगी? स्क्रैपिंग करके, ठीक है, स्क्रैपिंग करूंगी मैं। दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। सुना है क्या आपने? नो मैम, कोई आइडिया नहीं। वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको, जैसे कोई वैकेंसी आती है तो डेटा इंजीनियर बोलते हैं ना, तो डेटा इंजीनियर, हाँ मैंने डेटा साइंस पढ़ा है, मैंने मशीन लर्निंग पढ़ा है, तो डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो सर्वर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, बिकॉज वी हैव लॉट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अवर सर्वर। लाइक अगर मुझे कार से रिलेटेड डेटा चाहिए, सेकेंड हैंड कार, तो मैं क्या देखूंगी? कार देखो, कार 24, ये सब आते हैं। तो ये सारे साइट के डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी सर्वर से, दैट इज वो स्क्रैपिंग होता है, जो अलग टूल्स या लाइब्रेरीज होती है जिसको सीखना पड़ता है। हडूप है, बिग डेटा है, तो डेटा इंजीनियर लोग ये काम करते हैं, ठीक है। दैट इज अनदर कोर्स। आपको डेटा इंजीनियर बना है तो आपको हडूप, बिग डेटा, ये सब पे जाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर्वर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना। हम्म, गेटिंग माई पॉइंट? yes. या मैम। अब मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है तो वो क्या सही, मतलब एग्जैक्ट होगा? मान लो जाए कोई एक्सेल सीट है, एंट्री तो आखिर कोई रिसेप्शन में बैठ के किया है, भले ही वो सर्वर पे है, ठीक है। कभी 500 लिखते लिखते 5,000 लिख दिया, 5 लाख लिख लिया। डेटा मेरा रॉन्ग एंट्री भी होता है, नॉट नेसेसरी हमेशा आपका राइट होगा। अंडरस्टैंड? Yes. यस। तो उस डेटा आपको आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से डेटा चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल।
चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, जैसा भी आप मॉडल बना रहे हैं, जैसा भी आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, ठीक है। डैशबोर्ड तो आपने सुना होगा, डैशबोर्ड, या Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स में हम पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग में हम मॉडल बनाना सीखेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल जो प्रिडिक्ट करेगा आपका, ठीक है। तो ये डेटा जो मिलता है ना हमको, वो अनक्लीन मिलता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलता है, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स वाले पार्ट में हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना सीखेंगे, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। अनस्ट्रक्चर मैं बोल रही हूँ, अनक्लीन, जैसे मैंने बताया कि रॉन्ग एंट्री हो सकती है ना, डुप्लीकेट रो हो सकते हैं, नल वैल्यूज हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। लाइक मैं एक बार मेल को मेल ऐसा लिख रही हूँ और एक बार एम लिख दी हूँ, सेम मेरा एक्सेल का फाइल है, इसमें एक बार मेल को मेल लिख रही हूँ, बट बोथ आर सेम ना। सो इससे मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है। भैया मैं जान रही हूँ बिकॉज मैं देख रही हूँ, लेकिन क्या आप लाखों डेटा में एक एक डेटा को देख सकते हो? 10 है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको मैं मेल कर देता हूँ करके, अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. लेकिन आपके पास लाखों में रो है, तो क्या हर एक रो को आप जाके देखोगे? नॉट पॉसिबल। यस तो मैम। इस डेटा को क्लीन करना, दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स लोग का काम है डेटा को क्लीन करना, स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना और प्रॉपर वे में विजुलाइज कराना, ठीक है। विजुलाइज कराना दैट मीन्स डैशबोर्ड क्रिएट करना, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स में अगर आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आप अगर प्रॉपर उस पे जाओगे, तो हम एसक्यूएल कवर करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जिसमें क्वेरीज होती हैं, ठीक है, यस मैम। क्वेरीज। एक्सेल में हम एडवांस एक्सेल देखेंगे, एक्सेल लगभग सबको आता है नॉर्मली, है ना, इसमें एडवांस पे जाएंगे हम, ठीक है। और हम कवर करने वाले हैं पाइथन, ठीक है। और हम कवर करने वाले हैं पावर बीआई। आप कहीं भी डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में ये चारों, ठीक है। पाइथन में हम कोडिंग सीखेंगे पाइथन की, जिसमें हम डेटा को क्लीन करेंगे, एनालाइज करेंगे, ईडीए सीखेंगे, जनरली इसको कहते हैं एक्सप्लोरटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। पावर बीआई में हम विजुअलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे मीन्स डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे अपने डेटा के ऊपर। अब देखो डैशबोर्ड अपन को, हमारे को केवल क्या देता है, ओनली एंड ओनली विजुअल्स देता है ना, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकते, ओके। दैट इज ओनली यूज फॉर प्रिडिक्शन, visualization. If I want to define the dashboard, what is a dashboard? From the large amount of data, we can use useful data, extract the useful data from the large amount of data and present it in meaningful way for the company growth. Which company? Any kind of company. ठीक है, किसी भी एक छोटे से शॉप हो, ग्रोसरी शॉप हो, या बड़ी सी कोई इंडस्ट्री हो, बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, ठीक है, मार्केटिंग सेक्टर हो, किसी के लिए भी अगर आप पावर बीआई सीखते हैं तो डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका ओनली पावर बीआई इंजीनियर का भी पोस्ट निकलता है, आईटी सेक्टर में पावर बीआई डेवलपर का अलग से पोस्ट निकलता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सिर्फ एक चीज सीख के मैं अप्लाई करूंगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आजकल इंडस्ट्री ऐसा है कि उनको थोड़ा पैकेज चाहिए, जिनको वो कहीं भी यूज कर सके, सारे चीजों का, आपको एकदम डीप नहीं लेकिन सारे चीजों का नॉलेज चाहिए। तो पावर बीआई हम ऐसा कराएंगे आपका कि आप विद इन अवर डैशबोर्ड बना सकते हैं, अंडरस्टैंड, यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब मैं, सर ने यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में ये चारों पार्ट आते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट में मशीन लर्निंग भी दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं मशीन लर्निंग के बारे में बात करूंगी, ठीक है। व्हाट इज मशीन लर्निंग?
इफ आई टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, मशीन को लर्न कराना। गेटिंग माई पॉइंट? मशीन को लर्न कराना, ठीक है। मशीन लर्निंग नाम से भी समझ में आ गया, मशीन को लर्न, बट हाउ, कैसे, कैसे लर्न कराएंगे? और लर्न करा के क्या करते हैं, उसी से प्रिडिक्ट करवाते हैं कि क्या होगा। लाइक आपने सुना होगा कि टुमारो, मतलब आपके फोन में भी आता है कि कल का वेदर क्या होगा, कल रैन होगा कि नहीं। अंडरस्टैंड? कल Yes, ma'am. रैनिंग होगी कि नहीं। तो अगर आप न्यूज में सुने होगे तो हमेशा कल रैन होगा ऐसा नहीं बोलते हैं, प्रायोरिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आप कल वर्षा होने की संभावना है। अंडरस्टैंड? कोई श्योर नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। अंडरस्टैंड सूरज, अदीबा? Yes, ये ma'am. सारी चीजें प्रिडिक्शन होती है, वो हम मॉडल क्रिएट करेंगे, मशीन लर्निंग हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल अगर क्रिएट करते हैं तो वहां से हम प्रिडिक्शन करेंगे किसी भी चीज का। लाइक नॉट नेसेसरी आपका रेनफॉल का आप प्रिडिक्शन करोगे, एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। मान लो जाए मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, सैलरी बेस एम्प्लॉय, इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर लोन, ठीक है, तो मुझे लोन मिलेगी कि नहीं, प्रायोरिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। आप जाओगे, आप अपनी सैलरी बताओगे और कुछ कुछ बताओगे कि इतने लोग डिपेंडेंट हैं, मैरिड हूँ, दो चार जो भी फॉर्म में उन लोग फिलअप करते हैं, दे उनके पास मॉडल होता है जिससे वो एनालाइज। आप ऐसे भी ऑनलाइन आजकल मॉडल आ गए हैं जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन दोगे तो आप लोन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, वो बता देगा। वो भी एक मशीन लर्निंग मॉडल है। अंडरस्टैंड? इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो तो आपका क्लेम जो है वो प्रूफ होगा कि नहीं, ये मॉडल बताता है। पहले क्या होता था, बड़े लंबे लंबे फाइल होते थे, ठीक है, उसको पूरा रीड करते थे, हाँ इसका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट है, मान लो जाए क्लेम के लिए जाओगे, जो भी फॉर्मेलिटीज लगता है वो सारा ये है करके पूरा पढ़ लिख के, बहुत लंबा प्रोसेस होता था किसी क्लेम के लिए। अब क्या होता है, एआई के थ्रू होता है, बोलते हैं ना सारा चीज। तो कुछ नहीं, मॉडल क्रिएट हो गया है, उस मॉडल पे बस इंफॉर्मेशन डालो और मॉडल बता देता है कि ही इज एलिजिबल फॉर क्लेम और नॉट। अंडरस्टैंड सूरज? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो इस टाइप का मॉडल हम बनाना सीखेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। आपका जो डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग का कोर्स आप प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रॉपर डेली ज्वाइन करते हैं और आप सीखते हैं, तो नॉट नेसेसरी जॉब, जॉब तो आपका ऑप्शन है ही, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। आप कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के लिए डैशबोर्ड आप बनाने के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप अपना खुद का डैशबोर्ड बना के या फिर खुद का मॉडल बना के क्लाउड पे उसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड पे डिप्लॉय करोगे, लाइक आप लोग आजकल यूज करते हो ना कि मेरा अ, ये सब मॉडल ही तो है, जैसे बैंक में ही ईएमआई कैलकुलेटर और ये सारी चीजें, इतने मंथ्स के लिए, इतने दिन के लिए लोन चाहिए, इतना चाहिए तो कितना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये स्टैटिक है, इसमें प्रिडिक्शन कुछ नहीं हो, वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस टाइप के मॉडल्स बना के प्रिडिक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। मशीन लर्निंग का, अब मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। मॉडल मॉडल बोल रही हो तो ये मॉडल होता क्या है, मॉडल बोलने से क्या समझ में आएगा इफ यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अंडरस्टैंड? एक छोटा बच्चा जब कभी पैदा होता है, ही इज टोटली ब्लैंक, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। मान लो चाहे वो उसको हम फर्स्ट टाइम जैसे ही लर्न करने लगा, दैट इज कॉल्ड, मतलब उसके माइंड को आप ऐसे मशीन ले लो, खाली मशीन, ठीक है। उसने फर्स्ट टाइम एक बिल्ली देखी तो उसने सोचा, मतलब उसको मैंने कहा दैट इज कैट, तो उसने सोच लिया हाँ ये कैट है।
बट किसी और ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं ये डॉग है, तो वो सोचेगा कि हाँ ये डॉग है, क्योंकि अभी उसके पास क्या नहीं है, डेटा नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वो पचासों बार कैट देखेगा और बार बार उसका नाम कैट ही सुनेगा। देखो बिल्ली जा रही है, भले उसको सिखा नहीं रहे हम लोग, वो देखो बिल्ली जा रही है, बिल्ली ऐसा कर दी, ऐसा सुन सुन के उसके दिमाग में आ जाएगा। जिसका जो ऐसा दिखता है, इस कलर का होता है, जिसकी पूंछ ऐसी होती है, वो बिल्ली होती है। वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा। कहाँ से लर्न कर रहा है? डेटा से, उसके माइंड पे डेटा फिट हो रहा है। अंडरस्टैंड? पहले उसके माइंड में एक ही डेटा था, जिसमें गलत हमने बताया था कि ये डॉग है करके। ठीक है, तो जितना डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा है ना, डेटा का क्वांटिटी जितना बढ़ेगा, वो उतना ही अच्छा उसका दिमाग काम करेगा। वैसे ही जब हम मॉडल को लर्न कराएंगे, मॉडल इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बेस्ड होता है, वो एल्गोरिथम हम बताएंगे। उस एल्गोरिथम में जितना अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वो मॉडल उतना ही अच्छा वर्क करेगा, उसकी इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. जितना एक्यूरेट होगा और जितना अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो मशीन कैसे लर्न करता है? बाय यूजिंग डेटा। कौन सा डेटा? हिस्टोरिकल डेटा। मैं अगर कल रेन होगा कि नहीं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास पिछले कई सौ सालों का डेटा है, मतलब कई सालों का डेटा है। किसके पास? वेदर डिपार्टमेंट में भी जो भी प्रेडिक्ट करते हैं उसके पास डेटा है। लाइक किस टाइप का डेटा होगा वो? रेनफॉल के लिए, कि आज ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ विंड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है। वैसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फीचर्स, लाइक वो कॉलम्स होंगे फीचर्स, इस टाइप का बहुत सारा डेटा होगा। तो वो आज के साथ मैच करेगा, जब विंड का डायरेक्शन ऐसा होता है ना, टेम्परेचर इतना होता है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, उस दिन पानी गिरता है, दैट मीन्स आज पानी गिरेगा। ऐसे ही प्रिडिक्शन होता है ना। तो वो डेटा जो है वो मॉडल पे फिट करते हैं, एल्गोरिथम पे फिट करते हैं, उसी के हिसाब से वो हिस्टोरिकल डेटा से ही प्रिडिक्ट करता है। अंडरस्टैंड? कुछ समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट आपको मशीन लर्निंग का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा से मशीन को लर्न कराते हैं, और कोई न्यू डेटा को उसको देके प्रिडिक्ट करवाते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का डेटा हो, नॉट नेसेसरी कि आपका एक सिंगल टाइप का, किसी भी तरीके का। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल रिलेटेड डेटा हो। ठीक है, मैं बोलूंगी कि हॉस्पिटल में अगले महीने कितना, मान लो चाहे अगले महीने कितने पेशेंट आने की वो है करके प्रायोरिटी है ना, प्रिडिक्शन कराने बोलूंगी। तो एक मॉडल बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि पूरे साल भर का हमने देखा कि सर्दी में या ठंड में इसके पेशेंट ज्यादा होते हैं, सर्दी खांसी के पेशेंट जो भी है, तो वो डेटा से ही फाइंड आउट करके प्रोडिक्ट करेगा। ठीक है, ये रही मशीन लर्निंग की बात। बट अपने पास क्या है अब? डीप लर्निंग। ये एडवांस है मशीन लर्निंग से। अंडरस्टैंड? इफ हम वर्क करते हैं अपने एक्सेल सीट नॉर्मल डेटा पे, ठीक है, जो अपना जो रो और कॉलम पे होता है, फॉर्म पे होता है, या टेक्स्ट डेटा होता है, देन हम किस पे जाते हैं? मशीन लर्निंग के। बट हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स डेटा आती है, कॉम्प्लेक्स डेटा किसको बोल सकते हैं हम लोग? वॉइस डेटा, ठीक है, इमेज डेटा, या फिर लंबे लंबे टेक्स्ट जो होते हैं, सेंटेंसेस टाइप का डेटा, जहां पे मशीन लर्निंग काम नहीं कर पाता, तो हम डीप लर्निंग यूज करते हैं। ये उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, आपने जैसे एनएलपी सुना होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। एनएलपी सुना है क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप लोग बीटेक में पढ़े होगे, है ना सूरज? यस मैम, पढ़े। है ना, तो उसका तो आपको आइडिया है ही। ठीक है, तो ये सारी पार्ट आपका डीप लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, तो आपका 6 मंथ, जो 5 मंथ 6 मंथ का यहाँ करिकुलम है, उसमें हम मशीन लर्निंग तक कवर करेंगे, और ये आपको बहुत इजी भी जाएगा। ठीक है, आप कुछ और लाइब्रेरी, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे लर्न करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है।
देन आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यूज करके डीप लर्निंग एनएलपी का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स की खासियत यह है कि ये टोटली आपका प्रैक्टिकली होता है, और कंपनी को नीड है प्रैक्टिकल का। आप रट लो कितना भी थ्योरी नॉलेज रहे, जब तक आपका स्किल सेट नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तब तक आप आईटी कंपनी में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट है आपका, ये जो हम स्किल सिखाएंगे दैट इज अ हार्ड स्किल। जो हम आपको कोडिंग करना सिखाएंगे, टूल सिखाएंगे, पावर बीआई सिखाएंगे, दैट इज ऑल द हार्ड स्किल। आपको यहाँ पर सॉफ्ट स्किल में भी, सॉफ्ट स्किल आपको समझ में आता है क्या? यस सॉफ्ट मैम। स्किल दैट मीन्स कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना? यस तो मैम। इसमें भी आपको एक्सपर्ट किया जाएगा। बीच बीच में आपका मॉक टेस्ट होगा, और प्लस आपका रिटन एग्जाम होगा। जैसे कुछ, जैसे मैंने अभी पावर बीआई फिनिश किया तो उससे रिलेटेड आपका एग्जाम्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाए कि आप जब फाइनल इंटरव्यू पे बैठे तो आपको हेजिटेशन ना हो, या फिर बार बार होने से आपको रिपीट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप इंटरव्यू में अगर फेस कर लेंगे तो आप अभी नहीं कर पाए, लेकिन आप वही चीज फाइनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक मैम है, इंटरव्यू में एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग वगैरह भी रहेगा क्या? यहाँ पर तो आपको, यहाँ पर मॉक इंटरव्यू होगा, और यस नॉर्मल जो मैम। हम डेटा एनालिटिक्स और ये सब पढ़ाएंगे उसका होगा। ठीक है, इफ यू आर एक्सपीरियंस तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, स्नेहा लाइक यू। ओके, और एप्टीट्यूड का भी शायद सेशन है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनर हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। वो सर, सर आपको पूरा बताएंगे। मैम और इसका प्लेसमेंट वगैरह कैसे रहता है? हाँ, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको सर देंगे, या फिर आपको पर्सनली आप कॉल कर सकते हो, बिकॉज मैं टेक्निकल ही हैंडल करती हूँ, है ना? तो यस मैम। कंपनी के बारे में, जो प्लेसमेंट है और सैलरी है, ये सब आप सर से डिस्कस करेंगे, संतोष सर जो कनेक्ट किए थे। ठीक यस है, मैम। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोर्स क्या क्या करने वाले यस हैं, क्या करिकुलम होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पावर बीआई सिखाया, एसक्यूएल सिखाया, तो पावर बीआई को एसक्यूएल, अरे डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से। अंडरस्टैंड? तो पावर बीआई में डैशबोर्ड तो बनाओगे, लेकिन आपको डेटा चाहिए तो उसको एसक्यूएल से कनेक्ट करना, पाइथन से कनेक्ट करना एक दूसरे को। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होगी, सेशन पे ही, क्लास पे होगी। आपको पेन पेपर कुछ भी नहीं, ओनली लैपटॉप चाहिए, और सॉफ्ट स्किल माइंड भी थोड़ा सा। आप बिकॉज डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी खुद से लगाना है, मैम यूज तो करना पहले है। थ्योरी क्लासेस होगी ना, मतलब उसका बेसिक से? हाँ, बेसिक से होगा, लेकिन सारी चीजें प्रैक्टिकली होगी। अब मैं आपको विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बताना सिखा रही हूँ, तो आप पेन पेपर में ड्रॉ करेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हाथ से सीधा लैपटॉप पे करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैम लैपटॉप पे करेंगे बताइए। हाँ, तो पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, थ्योरी होगी। ठीक है, बीच बीच में मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगी, प्लस आपको नोट्स भी दूंगी, बट सारा चीज आप प्रैक्टिकली। लैग कहाँ कर रहे हैं स्टूडेंट? मैंने जितना देखा है यहाँ पे बीई कॉलेज में, अब भोपाल का तो आइडिया नहीं है सूरज, आई बिकॉज आई एम फ्रॉम रायपुर। ओके, छत्तीसगढ़ के कॉलेज का आइडिया है, बिकॉज मैंने कॉलेज में भी जॉब किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फेस किया है कि बच्चे जो हैं वो थ्योरी, मतलब उनको क्या है, ओवरऑल डिग्री तो चाहिए, एग्जाम पास करना है, तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आपका जो जॉब है वो प्रैक्टिकल स्किल पे ही लगना है। आपको काम पेन पेपर पे नहीं, आप अगर सेलेक्ट भी होते हो तो लैपटॉप पे ही काम करना है। अंडरस्टैंड? यस मैम। है ना? जो पार्ट ऑफ इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे वो हम प्रॉपर कराएंगे। हर एक क्लास में जो भी थ्योरी होगी वो आपका कवर होगा, किससे? प्रैक्टिकल से ही। लिख के याद नहीं करना है, दिमाग में याद मैं ऐसे ही करवा दूंगी, उसका आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं अगर डैशबोर्ड बोल रही हूँ तो बार बार आपको, बार डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड क्या है, इतने बार बोलूंगी कि वो आपको दिमाग में ऐसे ही याद रहेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम और मेरे एनी को डाउट? एक क्वेश्चन पूछो, जैसे मेरा 10 ईयर का गैप हो गया है,
और मैं ना फुल टाइम नहीं दे सकती अभी, तो मेरे लिए ये कोर्सेज ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक्चुअली फुल टाइम नहीं दे सकती, दैट मीन्स मतलब नेहा। मैं दिन के एक्चुअली 4 to 5 आवर्स ही दे सकते हैं, अगर कोई जॉब भी लगती है या फिर वैसे फ्रीलांसिंग तो। हाँ, आपका देखो, वही तो मैं फर्स्ट में बताई थी स्नेहा, हम्म देखो आपको ये जो कोर्स है, ठीक है, हम्म वो ऐसा नहीं है कि ओनली जॉब के लिए कर रहे हो आप। जैसे हाँ आई हम्म एम ऑल्सो, हम्म मैं भी 35 ईयर ओल्ड हूँ, मेरी भी बेटी है, ठीक है, हाँ और मेरे को ये सारी चीजें आती हैं। मैं भी पहले आईटी में ही थी, ठीक है। अच्छा फिर मैं मेरी कोरोना वोरोना हुआ तो मैं सब आईटी का जॉब छोड़ी, हाँ ठीक है। और ये सारा कुछ तो मेरे को आता ही था, थोड़ा सा और लर्न की। मैं हम्म एज ए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रही थी, मुझे मजा नहीं आया बिकॉज वहां पर थ्योरी इतना था ना, और मुझे उसमें हम्म इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। हाँ मेरे पास स्किल है, आज मैं हम्म जो कर रही हूँ, मैं यहाँ पर फुल टाइम नहीं, जिस हम्म टाइम पे मेरा क्लास होता है उसी में कर रही हूँ ना। तो मैं हाँ फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ, मान के चलो। मैं हाँ अभी 1 घंटे का आपका क्लास लेती हूँ, सुबह एक आध घंटे, जैसे मैं जहां जहाँ हम्म पे फ्री हूँ, बच्चे को हम्म टाइम देना वहां पे बच्चे को दे रही हूँ, एक आध घंटा यहाँ दे रही हूँ, एक आध, समझ हम्म रहे हो ना, जो जो हाँ क्लास हाँ। होती है बस उसमें प्रेजेंस होती है। ये तो आपका स्किल प्रोफेशर आपका वाला कभी, लाइन हो गया ना, पर अगर मैं हाँ, ये डेटा एनालिटिक्स या फिर मशीन लर्निंग में जाती हूँ तो उसमें कैसे करना है? मतलब उसमें पूरा बहुत ज्यादा टाइम देना मैं रहता एक है कि? एग्जाम्पल दी हूँ आपको, बहुत हम्म ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीलांसिंग कर अच्छा सकते हो। बट आपको अच्छा फ्रीलांसिंग का आइडिया होना चाहिए, है ना, तो वो हाँ, आप वही वो एक प्रोजेक्ट बार आप मिलना सुन लो, चाहिए। एक बार हाँ आप सीख लो, तो आपको धीरे धीरे वो आइडियाज भी होने ऑटोमेटिक हम्म आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे, कि मैं अपना प्रोडक्ट डेवलप करती हूँ, कुछ अपना मॉडल बनाती हूँ, क्लाउड पे हम्म डालती हूँ, व्यूज पे पैसे मिलते हैं, है ना, हम्म अंडरस्टैंड। या हाँ फिर फ्रीलांसिंग करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी रहता है, वर्क फ्रॉम होम, हम्म ठीक है। मेरा भी 5 ईयर का, 2 to 3 ईयर का गैप हो गया था हम्म कोरोना पे, फिर भी मैं स्टार्ट कर ली, बिकॉज आई हैव स्किल्स कभी बेकार नहीं जाती, इतना याद हाँ रखो, वो तो है। ठीक है। पर वही है इसमें, मतलब जैसे अर्जेंट में ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है कि जैसे 1 मंथ के अंदर आपको देना या फिर 15 डेज के अंदर, वैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं? किस टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं? अ, ये तो टोटली डिपेंड करता है नेहा, है ना, आप टीम पे वर्क कर रहे हो, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम्म ठीक है। एक छोटा प्रोजेक्ट है आप अकेले कर सकते हो, या फिर टीम पे करना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पर रायपुर में बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे सर का टाई अप है, तो उस हिसाब से आप अच्छा। सर से मेरा बात कर मेन लीजिएगा, है ना। कंसर्न है कि मैं इतना टाइम दूंगी, मतलब जैसे 5 to 6 के साथ, तो फिर मेरे को कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, बस वही कंसर्न है, और कुछ नहीं है कि तो कुछ प्रोजेक्ट नेहा, मिल इसके गया। लिए हम लोग पर्सनली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक आप है। हाँ हाँ, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा अजीत से, या फिर अजीत से ही बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसके ऐसे लिए करते हैं। पर्सनली कनेक्ट करते हैं, ठीक ठीक है। है सूरज एंड अधिबा, आपको कुछ डाउट है? मैम, जैसे मेरी बात हुई थी मैम से, तो जैसे डेटा साइंस के लिए जाना है तो डेटा एनालिटिक्स उसका बेसिक है। हम्म। हाँ, डेटा मैम तो एनालिटिक्स में क्या है, आप पाइथन वगैरह सीख लोगे ना, तो डेटा साइंस में आप इजिएस्ट जा सकते हो। मशीन लर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेटा साइंस। डेटा साइंस जो बोलते हैं ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, मैं आपको स्टार्टिंग में समझाई ना, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड डीप लर्निंग इंजीनियर, तो ये चारों चीज को आता है, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। बहुत मतलब हाई लेवल के 8-10 साल एक्सपीरियंस वाले लोग साइंटिस्ट होते हैं, अंडरस्टैंड। दैट इज द यस मैम। सबसेट ऑफ या पार्ट ऑफ डेटा साइंस। तो एकदम से आप डेटा साइंस इंजीनियर बोलते हैं उसको, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा साइंस, लेयर बाय लेयर यस ये मैम। डिवाइड होता है, ठीक है। बट आप एकदम से डीप यस मैम। लर्निंग सीखोगे बोलोगे, तो उसके लिए आपको पाइथन आना जरूरी है, मशीन लर्निंग आना जरूरी है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोली, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और एनी डाउट सूरज? आई थिंक सूरज इज नॉट देयर, है कि नहीं? No, ma'am, I am here. हाँ, यू हैव एनी डाउट सूरज? No, no, ma'am, no. So if you have any query about the anything else about our company and job point of view and salary point of view, then contact with sir. Okay.
बिकॉज Yeah, आई एम ए definitely. ट्रेनर। ओके, तो टेक्निकल इश्यूज अगर आपको कुछ है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है। लर्निंग के पर्पज यस से मैम। अगर कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज और इसके लिए श्योर मैम रहिए कि आप अगर यहाँ पर है तो आप प्रैक्टिकली मॉडल बनाएंगे, प्रैक्टिकली डैशबोर्ड, इवन आप अपना डैशबोर्ड लिंक्डइन में डालोगे, आप अपना डैशबोर्ड गिटहब पे बन डालोगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कराएंगे। गिटहब प्रोफाइल बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, आप अपने प्रोजेक्ट्स उसमें डालोगे, बिकॉज आज के डेट में वो पेपर वाला रिज्यूमे तो चलता नहीं है। अंडरस्टैंड? लाइक आप अपना रिज्यूमे कहीं पोस्ट कर रहे हो तो आपका डैशबोर्ड, आप बोल रहे हो कि आप पावर बीआई आता है आपको, तो कुछ तो प्रैक्टिकल तो एक लिंक होगा, आप अपने डैशबोर्ड का लिंक डालोगे, जो इंटरव्यूअर ओपन करेगा तो आपका डैशबोर्ड देख के उसको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आता है, क्या आता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ अब थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा चले गया है। गेटिंग ओके माई पॉइंट, सूरज? मैम। और आप लोग प्रोजेक्ट्स में भी हैंड्स ऑन करवाएंगे ना, जैसे दो तीन? हाँ हाँ, प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन होगा। अच्छा ठीक। आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ही तो है जो आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो, और हाँ उसका वही ना, वही इम्पोर्टेंट है, तो वही प्रैक्टिकली आना चाहिए वही। प्रोजेक्ट आपको रिज्यूम में डालना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके, सो थैंक यू ऑल। सर, संतोष सर, कैन आई रैप अप द सेशन? Yeah, hi ma'am. Hello. या सर, कैन आई रैप अप और एनीथिंग Yeah, एल्स? so I think we are done. So thank you for all joining these sessions. And in case of any further questions, we can connect in one to one. Okay. So I heard some questions from स्नेहा। I'm sorry, I'm not able to recall the name who has joined as a स्नेहा user. मैम, स्नेहा मैम। नेहा। Sneha. Okay, yeah, sure. So Sneha, what we can do that we can connect in one to one sessions. Okay. ओके ओके श्योर। And then we can discuss about all the questions and points. And then similarly, like any questions from the Ruchi and Suraj and Adiba, we can connect in one to one. Okay. यस सर। So yeah, so this is the 6 months course as ma'am explained, right? In that course, basically we'll be covering all the relevant topics related to the data analytics, data science, including the project for each every stages. So every stages means like the Power BI project, Python project, then the Excel project, then the MySQL project. So there are a lot many projects that will be covered during the sessions, and there will be some bigger project as well. And then definitely like the mock test and all that. So like you'll be also getting a questionnaires like how to answer the technical questions, how to answer the this HR related question, everything. So like the mock will be conducted and with the detailed feedback, everything. So let us connect in one to one, okay, and then definitely we can discuss about the specific questions or any relevant question that you have related to your background, related to your basically the educations and all that. Yeah. जैसा। ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. I think someone has joined Mirtu. Sorry, who has joined? Hello. Yeah, I think Mirtu Vasni has joined. हेलो। Yeah, hi Ruchi, hello. हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन करना था सर कि ये ऑनलाइन ज्यादा मतलब ऑनलाइन ज्यादा अच्छे से अपने को समझ में आएगा कि ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से समझ में अगर आएगा? आप रायपुर में हो तो प्रेफर्ड है कि वी रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन। अगर आप रायपुर में हो तो ट्राई टू कम टू द सेंटर, ओके। वी ओके। कंडक्ट इन ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड, बट वी बेसिकली रेकमेंड टू कम टू द ऑफलाइन अगर पॉसिबल है। अगर सभी रायपुर के स्टूडेंट्स हैं, इवन देर आर मेनी स्टूडेंट ओके। फ्रॉम द बिलासपुर और भिलाई जो कि ऑफलाइन में आते हैं, राइट। सो बेटर है कि रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आप रायपुर में हो, अगर आप कन्वीनियंट अगर आपके लिए आना, तो ट्राई टू कम टू द सेंटर, या। ओके। सर ओके। इसको ये हाइब्रिड टाइप का पर डे कर पे। सकते? हाँ। हेलो। हाँ हेलो, मैं पूछ रही थी जैसे कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, वैसे जिस मतलब जैसे पॉसिबल हो वैसे कर सकते हैं क्या?
हाँ कर सकते हैं, बिकॉज द सेशन इज कंडक्टेड ऑनलाइन, इवन द रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ओके। ओके। बट अगर पॉसिबल है तो होता है ना कि एक बेटर इंटरेक्शन होता है अगर ऑफलाइन में अगर आते हैं आप लोग हाँ, तो। वो तो अच्छा होता ही है, पर हाँ अच्छा। बाय चांस जैसे करेक्ट। मैनेज नहीं हो पा रहा है हम्म। किसी दिन, तो उसको हाँ हाँ, ऑनलाइन भी नहीं कर उसके लिए सकते। कोई, इनफैक्ट उसके लिए कोई इशू नहीं, मतलब कि अगर ये तो 6 मंथ्स का ओवरऑल प्लान है, राइट, तो उसमें होता है कि हम्म। कोई कहीं कभी बीच में चले गया, कभी हम्म। आना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बट द सेशन इज कंडक्टेड इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, सो ओके। इवन इनफैक्ट सेशन मिस नहीं होता है किसी का भी। ओके। एंड ये सेशन रिकॉर्ड होते हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए एलएमएस पोर्टल पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाता है आफ्टर जी। क्लास, वहाँ से भी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अब होता क्या है कि जैसे कि वी स्टार्ट विद द पावर बी एग्जाम्पल, राइट। सो द पावर बी आपका 1 मंथ चला, उसके बाद फिर पाइथन चलेगा, तो हो सकता है कि आप जो आज कॉन्सेप्ट अगर स्टडी कर रहे हो आपको दिसंबर में वो याद नहीं रहेगा, सो यू नीड सम हम्म। काइंड ऑफ रेफरेंस देन वेयर यू कैन गो एंड रेफर। हम्म। तो उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑन द एलएमएस at any point of time that you can access for each classes. ओके सर। So that facility is also provided even though the class is offline online, but the LMS का access provide होता है जहाँ पे कि जो भी क्लासेस होंगे और जो भी क्लासेस रिकॉर्ड होंगे, ऑल द क्लासेस वहाँ पे एक्सेसिबल रहेंगे आपके लिए। ओके। सर कोई टाइम है कि मतलब किसी भी टाइम में कर सकते हैं ये नहीं नहीं टाइम? नहीं, टाइम रहेगा, बिकॉज सो अभी हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग का एक स्लॉट देख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि ओवरऑल सारे लोग कहाँ पे फिट बैठते हैं, इधर वी कैन गो फॉर इवनिंग स्लॉट और वी कैन गो फॉर ए मॉर्निंग स्लॉट, या सो बोथ आर बेसिकली हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओके। एक आपके, आप जिस बैच में रहोगे उस बैच का एक फिक्स टाइमिंग रहेगा, एंड या तो मॉर्निंग रहे तो इवनिंग रहे, बट हाँ उस बैच का एक फिक्स टाइमिंग होगा। ओके। तो मॉर्निंग में क्या टाइम रहेगा? मॉर्निंग में हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं 8 to 9, द रीजन इज दैट बिकॉज 8 to 9 में लेट्स से कि अगर कंप्लीट होता तो पूरा इंटायर डे यू कैन यूटिलाइज फॉर सम अदर एक्टिविटीज एज वेल, तो उसमें अगर मान लीजिए कि कोई अगर वॉकिंग है, कोई अगर स्टूडेंट है, तो उस केस में क्या उसको एडवांटेज मिलता है कि दैट द रैप ऑफ द क्लास रैप अप बाय द 9 AM, ओके, और 9:30 उसके बाद द इंटायर डे इज अवेलेबल टू डू सम अदर एक्टिविटीज, ये तो उस तरह और से। सर अगर कॉलेज वगैरह है फिर? कॉलेज है तो फिर हम लोग अर्ली और थोड़ा मॉर्निंग का बैच ले सकते हैं, या इवनिंग का बैच ले सकते हैं, लेट इवनिंग का, इवनिंग सो का ऑल द क्या ऑप्शंस ले। टाइम है? इवनिंग। इवनिंग में अभी जैसे कि करेंट द बैच इज गोइंग ऑन एट द 4 to 5, 6 to 7, सो एक स्लॉट अभी हमारे पास में 5 to 6 का एक है, और नहीं तो फिर एक मॉर्निंग का, सो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर इसको एडजस्ट करेंगे। तो प्लेसमेंट वगैरह क्या रहता है? प्लेसमेंट के लिए लाइक यस वी हैव ऑप्शन, सो अभी हम लोग प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यू आर फ्रॉम रायपुर और सम अदर प्लेसेस? सर रायपुर। रायपुर में, सो यू डू नो CSBTU, राइट, स्वामी यस विवेकानंद सर। टेक्निकल यस यूनिवर्सिटी। सर। यस तो सर। उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वहीं पे जैसे कि अगर वहाँ पे जितनी भी कंपनी अगर आएगी प्लेसमेंट के लिए, सो हमारे यहाँ से भी जो भी हमारे जो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, फुल स्टैक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सो CSBT जो भिलाई में है वहाँ पे बेसिकली वी आर ए लाइक ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ऑल द प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, ऑल द एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स we train the students from a aptitude perspective, aptitude, communication skill, and recently we completed this employability training in the BIT रायपुर, अगर आप लोग अगर BIT रायपुर के बारे में अगर पता होगा यस तो सर। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, सो हम लोग इनके सारे सारे लोगों का ऑफिशियल पार्टनर है। एंड देन सो जहाँ जहाँ भी जैसे कि अगर भिलाई में अगर कंपनी, अगर रायपुर में अगर BIT में कोई अगर कंपनी आ रही है, CSBT में अगर कोई कंपनी आ रही है, RIT में कोई कंपनी आ रही है, इनफैक्ट अभी रिसेंटली बिलासपुर में डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, आप लोगों को पता है? यस सर। हाँ वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था, ऑलमोस्ट 11 कंपनीज, 14 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग कोर एंड नॉन कोर। सो यहाँ पे CSB2 से हमारे थ्रू करीब करीब काफ़ी स्टूडेंट गए थे, वहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने दिया था, मतलब बिलासपुर में डॉक्टर CV रमन के कैंपस में उनका प्लेसमेंट हुआ था। सो ऑल द डिटेल्स यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन आवर इंस्टा चैनल, लाइक जो भी हमारा इंस्टा है चाहे लिंक्डइन है, सो कब हुआ था, कितने लोगों का सिलेक्शन, सो एवरीथिंग दैट ऑल द डिटेल्स आर देयर। सो द डिपेंडिंग ये तो ऑन कि हंड्रेड आपका परसेंट बैकग्राउंड, कि प्लेसमेंट रहता है आपका इसमें? स्किल सेट क्या है, आपका ओवरऑल किस तरह की कंपनी में आप प्लेस होते हो, सो देर आर मेनी थिंग्स। सो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का अगर 5 LPA का किसी को जॉब मिला तो आपको भी 5 LPA का जॉब मिलेगा, अगर किसी को 1.5 LPA का जॉब मिला तो आपको भी 1.5 LPA का जॉब मिलेगा। सो ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका बैकग्राउंड कैसा है,
आपका स्किल सेट कैसा है, आप किस तरह की कंपनी का इंटरव्यू आप क्रैक कर रहे हो। डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर्स हो तो यू हैव टू ऑल्सो कमांड ऑन द एप्टीट्यूड, देन द जो ट्रेनिंग होता है एप्टीट्यूड का, जहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग आएगा। सो अगेन देर आर लॉट मेनी थिंग्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी इंटरव्यूज, बट बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई जगह एक कॉलेज में अगर हम लोग कंबाइंड अगर कुछ अगर प्लेसमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो एट द सेम टाइम a student gets chance to appear in the 2 to 3 interviews in the same place, at the same place. So वो एक एडवांटेज मिलता है। बट हाँ, प्रिपरेशंस ऑल दैट यू हैव टू डू, कि आपके साइड का प्रिपरेशन से स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दैट इज वाई बेसिकली वी कंडक्ट द मॉक टेस्ट, एंड इन मॉक टेस्ट बेसिकली वी प्रोवाइड द डिटेल फीडबैक। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए कि भी अगर अगर आपको अगर फीडबैक प्रोवाइड अगर हम लोग करते हैं, एंड देन ऑल्सो वी प्रोवाइड द टाइमलाइंस। वाई द टाइमलाइंस, जैसे कि अगर हमने बोला कि अगर आपका कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे पॉलिसिंग की जरूरत है, डेफिनेटली हम लोग लैंग्वेज किसी को नहीं सिखा सकते हैं, बट वी कैन प्रोवाइड द फीडबैक, वी कैन डू द ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। सो हमारा क्राइटेरिया जब भी हम लोग मॉक करते हैं, द 5 पैरामीटर्स बेसिकली वी जज। सो पैरामीटर 1 इज दैट इधर यू एन ऑल द 3 सेक्शंस आर बिलो एवरेज हो, गुड हो, एवब गुड हो और एक्सेलेंट हो। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो, यू विल बी गेटिंग जेन्युइन फीडबैक। एंड वाई वी प्रोवाइड द जेन्युइन फीडबैक, क्योंकि आपको कहाँ पे एफर्ट डालना है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। कोई टेक्निकली स्ट्रांग होता है, किसी का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, किसी का प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होता है, बट वी हैवंट सीन कि कोई भी हर एक एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने ऊपर एफर्ट डालना है इफ़ यू वांट टू गेट ए जॉब। जैसे कि अगर इनफैक्ट अगर आपको फ्री लांसिंग भी करना है, तो आपको उस ब्रॉडर लेवल का नॉलेज होना चाहिए, जो मैम ने एक्सप्लेन किया कि आपको अगर अगर डेटा साइंस में फ्रीलांसिंग करना है, डेटा एनालिटिक्स में फ्रीलांसिंग करना है, तो यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ द नॉलेज। तो काफ़ी कुछ मैटर करता है, मतलब जॉब के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए। एंड तो स्किल पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, एंड देन डेफिनेटली लाइक काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बट हाँ, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू ग्रैब दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यप। और कुछ क्वेश्चंस है सर किसी एक का? क्वेश्चन था कि पर डे पे कितने आवर्स की क्लासेस होते हैं? पर डे 1 hour। वी ट्राई टू ओके। कंप्लीट 4 days in a week। वाई द 4 days in a week? बिकॉज जो असाइनमेंट्स अगर आपको मिलेंगे, सो नॉर्मली हाँ जी। कि आपको असाइनमेंट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, डेटा सेट, ये सब में काफ़ी टाइम लगता है। सो बेसिकली वी ट्राई टू कंडक्ट 4 days in a week, एंड देन उसके बीच में गैप आएगा जहाँ पे कि आपको असाइनमेंट्स मिलेगा बीच बीच में, और टेस्ट होंगे। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज वी ट्राई टू कवर 20 classes, और बेसिकली 16 classes to 18 classes in a month। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके। So we can discontinue, and then Sweta, you there? Yes, sir. Actually, बच्चे आ गए हैं। Okay.